Can you see the comments, Viyash? I can't understand it. Exactly, even I can't. But Um, I think we are live now. yeah, we are live because I can see the Yeah. signal and the red one. I think someone's commenting here. Acha, Yeah, in Anu the Mitra is chat. commenting. Yeah, 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 yeah. yeah. Okay. Oh. Hmm. So Nidhi, can you see how many have joined? Where am I supposed to see that? I can't understand. We are live. Yeah. Wait a couple of minutes. He's writing. Yeah, sure. Uh, अंशु प्रमोदिनी जी will start as soon as some people join. जैसे ही कुछ लोग और Exactly. हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हम शुरू कर देंगे. Chats will be shown on the screen. अच्छा, okay. Yeah. Can't even read what he's writing. How to see Facebook comments, Anumitra? I mean, should we simultaneously open the Facebook Yeah. page and And from there? can we Yeah, even see can you that? do that? I'm No, not I sure. think I'm not getting it actually because I will show uh, relevant comments. Okay, makes sense. Makes sense. okay, He then said it's that he'll okay. keep us posted. Huh? Yeah, then it's Updated. okay. Hmm. Yeah. So how many have joined? Can you tell me, Yeah, if you can Anamitra? just tell us. Then we can just start our live Start, he's then saying. Yeah, the conversation. Yeah. correct. Start. Anumitra is asking to start. Okay. We can I'm probably. good. Okay. Okay. So today we have with us some of the most brave souls who have proved indeed that setbacks in life can only make us stronger. All of them at some point in their life or the other had faced this gruesome acid attack, but they didn't let that ordeal define the trajectory of their life. Like they say, acid was thrown on their face and not on their dreams. For those of you who don't know about Shiro's Hangout Cafe already, this is a Pay What You Choose cafe initiated by Chow Foundation, and it mainly employs survivors of acid attack who are often victimized at the hands of their own family members and romantic partners. According to the NCRB 2018 report, nearly 228 victims are recorded per year in India, and India is on rise in acid attack. Not only that, West Bengal is the highest among all the states. So, can you believe in the state of Raja Rammohun Roy this is still happening? And not only happening, this is highest. And in spite of the fact that we are living in 21st century, there's no denying that gender inequality still exists in India because nearly 70% of these victims are women. So, in order to address this growing national issue, today we have with us Pramodini Rao, Anshu Rajput, and Dolly G with us. So, first of all, congratulations to all of you. I mean, you guys are doing an incredible job. You guys are beacon of inspiration for all of us. I mean, truly, like the way you guys rose from ashes like a phoenix and carrying thousand others along with you guys, it's truly commendable. But before going into that topic, I mean, we would like to know about you guys in general. Like, मतलब प्रमोदिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बारे में कुछ बताइए. आपकी घर कहाँ है? आपके फैमिली में कौन कौन है? आपके हॉबीज क्या है? Like that. First of all, thank you so much giving me opportunity. And I'm Pramadin Rao from Odisha, and currently I'm handling Odisha chapter from Charm Foundation. I work for the betterment of the survivor here in Odisha.
एंड मैं 2016 से चाम फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। मेरा घर उड़ीसा जगतसिंहपुर, सबसे छोटी जिला जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से है। And when I was 16 years old, I got acid attack. मैंने that time मैंने acid attack को survive किया है। और मेरे acid attack का रीजन ये था कि जिसने मेरे ऊपर acid attack किया वो एक paramilitary पर्सन था। एंड मैं उस टाइम 12th में स्टडी कर रही थी और मेरे कॉलेज के पास कुछ ग्रुप आए हुए थे। उनमें से वो लड़का था 28 साल का एंड वो उड़ीसा का ही था, एक डिस्ट्रिक्ट का। और वो वहीं से वो मुझे फॉलो करने लगा एंड वो डायरेक्टली मेरी फैमिली को मैरिज प्रपोजल दिया था कि मैं उससे मैरिज करना चाहती हूँ। बट मेरी फैमिली ने मना कर दिया बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। एंड जब मेरी फैमिली ने मना कर दिया, तमाम कोशिश किया उसने पाने की, जब सारा कोशिश में वो नाकाम रहा, उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। लाइक ही थिंक कि अगर हम लड़के को परेशान करेंगे शायद वो अपने ड्रीम को बचाने के लिए वो मेरी बातों में आ जाएंगे। बट मैं उनमें से नहीं थी एंड मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही फ्रेंडली, बचपन से मेरे पापा नहीं है, हम 3 बहनें और मेरे माँ है। माँ हमेशा बेस्ट फ्रेंड की तरह रहता है हमारे साथ। तो इजीली हम मेरी माँ के साथ सब कुछ शेयर करते थे। तो वो जो परेशान करना शुरू किया मैंने इग्नोर किया न, उसने हद ही पार कर दिया। एक दिन उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मैंने जब घर में आकर बोला, उसको मैंने चाटा भी मारा था बट वो लॉन्ग था और मैं उसको उसकी मेरा चाटा उसके गाल पे नहीं बजा था, बस उसके नेक पे बजा था। लेकिन मैं घर में आकर रो के बताया और मैंने कॉलेज और ट्यूशन जाना 15 डेज के लिए बंद कर दिया। तो उसको लगा कि अब रास्ता सारा कुछ बंद है। उसने एक प्लान किया। उसने 2008 की बात थी यार, 2009 में 1 जनवरी में उसने फोन किया कि मैं रानी को परेशान नहीं करूंगी एंड मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, आर्मी ऑफिसर हूँ, और मैंने जो गलती किया मुझे माफ कर दिया, मैं दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो ये कह के उसने फोन काटा था और 15 डेज तक ना फोन आया ना हमारे घर के पास आया। तो हम लोग मेंटली क्लियर हो गए थे कि वो नहीं आएगा। देन हम जनवरी फरवरी मार्च के और अप्रैल टाइम थी जिस दिन मेरे को एसिड अटैक हुआ, 2009 18 अप्रैल। उस दिन मैं अपने कजन बड़ी पापा के बेटे के साथ मेरी छोटी मौसी के घर गए थे कुछ काम के लिए, कुछ सामान देने के लिए, घर से 1 किलोमीटर दूर। तो जब हम रिटर्न कर रहे थे उसने एसिड थ्रो किया और एसिड थ्रो के कारण मेरी बॉडी 80% बर्न हो गया था। मेरे ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। जो नहीं नहीं जब नहीं नहीं, यस, जो भी इस आप गेस्ट बताइए। सुन रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप नहीं, बताइए, मुझे कोई वरना प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक इसलिए है। कि मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहती हूँ क्योंकि आज जो उससे पहले थोड़ा सा बता दूंगी, आज जो परस्पर जो मैगजीन लॉन्च हो रहा है उसमें हमारा स्टोरी डिटेल्स है और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर थैंक यू, थैंक यू, आप लोग थैंक स्टोरी यू। पढ़ेंगे। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे उस मैगजीन में, क्योंकि परस्पर मैगजीन एक नए थॉट्स को लेकर, एक नए रास्ते को लेकर इस मैगजीन निकाला है। जैसे डिफरेंट कॉज होता है हमारे समाज में बट बहुत जगह में इसको बाहर नहीं लाते, लोग जान नहीं पाते, अवेयर नहीं होते। बट वेस्ट बंगाल मैगजीन, परस्पर मैगजीन ने इसको प्रूव किया है। इसमें इसमें आप प्लीज इस मैगजीन को फॉलो कीजिए एंड आप डिफरेंट स्टोरी पढ़िए, आपको बहुत ही इंस्पायर मिलेगा एंड अपने परिवार का, अपने लोगों का अवेयर कर पाओगे। तो ऐसा ही था, उसने मेरे पर आशित हो किया एंड 80% बॉडी बर्न हो गया। और मैं उस टाइम मेडिकल फैसिलिटी कुछ ऐसा नहीं था बिकॉज 2013 में इंडिया में लॉ आया और मेरे ऊपर पानी नहीं डाला था क्योंकि एसिड का जो गोल्डन आवर्स होता है वो 24 आवर्स में अगर सही से इलाज नहीं मिलता है तो वो इंसान से बहुत कुछ खो बैठता है। तो मेरे ऊपर हाँ 15 डेज ठीक, तक सही पानी बात। नहीं डाला गया और मेरे दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गई। 9 मंथ तक आईसीयू में रही। आईसीयू में रहने के अंदर मैं कोमा में चली गई एंड कोमा से 26 आवर्स में बाहर आ गई। बट मैं सिर्फ बोल पा रही थी एंड मैं ब्लाइंड हो चुकी थी एंड मैं पैरालाइज हो गया मेरा बॉडी। तो एक्सपेक्ट बाई मदर, फैमिली को लगा और कुछ होने नहीं वाला है, लड़के की चेहरा जल गई तो अस्तित्व जल गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो लोग डिस्चार्ज करके मुझे घर ले आए, सपोर्ट नहीं किए। तो 2009 से 2014 तक मैं बेड पे पड़ी रही। उसके बाद
किसी ने मुझे सपोर्ट किया था एंड मेरी माँ मुझे हमेशा साथ दिया था। तो मेरा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे मेरे फियांसे के साथ मुलाकात हुआ। वो एक अजनबी बन के मेरी लाइफ में आए, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फाइनली मैं चलने लगा, तो फिर मैंने 1 साल चलना प्रैक्टिस किया। फिर 2016 से मैंने कैंपेन ज्वाइन किया एंड ऐसे रहते सर्वाइवर के लिए काम करना शुरू किया। तो That's great. प्रमोदिनी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जो ये सब बोल रहे थे कि आपके भी तो कोई सपने होंगे लाइफ में कि आपको भी कुछ करना है लाइफ में, तो आप अभी उसे कैसे पूरा करने की कोशिश कर रही है अभी इस वक्त, इस हादसे के बाद? सपने तो यस सपने तो बहुत थे, क्योंकि जिस टाइम हमारे पास एसिड अटैक हुआ था, मोस्टली यहाँ पे अंशु है, डॉली है, सबके सेम एज में अटैक हुआ है। सिमिलरिटी मेरे पर 16 साल में अटैक हुआ था। गर्ल्स जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा सपने भरे पड़ते हैं। जैसे हम लोगों की जो समाज होते हैं, हमेशा महिला को ज्यादा मैरिज के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन मेरी माँ हमेशा हम लोगों को अलग दुनिया में अपने ड्रीम को तो मतलब सक्सेस करने के लिए हमेशा सिखाया था। तो मैं आईएएस ऑफिसर सिविल लाइन में जानना चाहती थी एंड ऑफिसर बनना चाहती थी। एंड आई एम क्लासिकल डांसर। अटैक से पहले मैंने क्लासिकल डांसर Wow. सीखा था बढ़िया। एंड यस बहुत अच्छा। बट अभी वो ड्रीम तो तब पूरा नहीं हो पाया। अटैक के बाद ये सब प्रॉब्लम आया, क्योंकि 5 साल में पैरालाइज स्टेज में रुकी एंड चलने का ये बहुत ही प्रॉब्लम था। चलने का मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जो 2014 में मैंने कंप्लीट किया। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था मैं कभी चलूंगी। ये लोग हमेशा छोटे छोटे बातों में डिप्रेस हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा एक ड्रीम कंप्लीट नहीं या दो ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन रास्ता बहुत है। नजरिया, हम लोगों के नजरिया बदलना चाहिए। हम एक जी चीज को बिल्कुल लेकर ज्यादा बिल्कुल। सोचेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे मेरे सही आंख बात ऑपरेशन हुआ 2017 में, और इसमें एक आंख लगाए, दूसरे इंसान को आंख लगाए, मुझे 18% से विजिबिलिटी दिखाई देता है, ज्यादा नहीं दिख पाती हूँ। मेरा राइट साइड एक डैमेज है, मैं 9 साल तक ब्लाइंड रही हूँ। लेकिन ऑपरेशन के बाद जिस आंख ट्रांसपेरेंट होता है, इसको बचा के रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हर सेकेंड में मुझे खतरा है, मैं ब्लाइंड होने का 100% चांस है, फिर भी कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड मुझे समझ लगना पड़ता है, सकती हूँ। दवाई डालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, हर चेकअप जाना पड़ता है। मेरा चेन्नई में ऑपरेशन हुआ है। लेकिन बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी कि यार आंख खराब हो गया। ठीक है, मैं चल पा रही, लेकिन इतना ज्यादा स्पीड नहीं चल पाती, क्योंकि वो 5 साल में जो बेड में रही कोमा जाने के बाद मेरा नर्व ज्यादा डैमेज हो चुका था। जब मैं रोड पे जाती हूँ तो किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है अभी भी। लेकिन मैंने सोचा यार मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, किसी का सहारा ही लेना हमेशा पड़ता है। मैं इवेंट जाती हूँ जो मुझे एक एक्सपोज की जरूरत है, तो मैं क्या करूँ जिंदगी में, क्या करूँ। लेकिन मैंने रास्ता को चेस किया एंड आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर में हमारे इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती हूँ एंड मैं होस्ट भी करती हूँ। आई एम एंकर में मुझे मैंने प्रोफेशनल एंकर नहीं किया, बट एंकरिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। देन उसके साथ मैं लिटरेचर लिखती हूँ और मैं अब भी डांस वाह। कर रही हूँ। एंड नाउ मैं क्लास भी Wow. ज्वाइन किया। मैं डांस को कम कम मतलब ऐसा होता है ना, हर ड्रीम वाह। का कोई एज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इस एज में करना चाहिए, उस एज में बढ़ना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। आपके अंदर वो हिम्मत है, वो हौसला है, वो ताकत है, करने की इच्छा है, तो रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस बड़ी पॉजिटिव वे से ठीक अगर हम चलते हैं। ठीक 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 बिल्कुल ठीक बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब यही चीज हम भी कल बात कर रहे थे कि आप इतने सारे मुश्किलों को उभर के आए हो, और अभी जितने सारे काम आप कर रहे हो प्रमोदिनी, आई मीन आई वी रियली वांट टू थैंक यू फॉर मेकिंग टेकिंग आउट सम टाइम इन जॉइनिंग अस, क्योंकि आपकी स्केड्यूल इतना या ज्यादा बिजी है, इतने सारे काम आप कर रहे हो और इतना मल्टी टैलेंटेड हो आप, मतलब इतनी सारी चीजें कर रहे हो साथ जी में। तो वही मतलब उसी चीज को लेके हमारा थोड़ा क्यूरियोसिटी थी आपसे ये जानने का कि अभी आप, जैसे आपने कहा कि आप एज अ पीआर भी काम करते हो, एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम करते हो, और आप एज एन एंकर भी काम करते हो, मतलब होस्ट करते हो बहुत सारी इवेंट्स को। तो एग्जैक्टली शीरोज कैफे में और चाव फाउंडेशन में आपका जो काम है वो किस तरह से है, क्या क्या चीजें आप करते हो, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत हमें कह पाओ।
चाम फाउंडेशन हमारा तो एनजीओ है। सिरोज हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल सिरोज काम करते हैं। मेरे दोस्त लोग यहाँ पे लाइक अंशु है, डॉली है। हम लोग जब मैं ब्लाइंड थी बहुत ही दिक्कत थी क्योंकि मुझे बाथरूम जाने के लिए सहारा की जरूरत, लेकिन मेरे माँ के साथ इन लोगों ने मेरा हमेशा, मेरे भैया लोग और मेरे दोस्त लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हर कदम में मेरा साथ देते। सिरोज लाइक एक फैमिली है। सिरोज में जितने भी मेंबर्स है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि आप अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और अलग ऑफिस में जाओ, वहाँ के जो अथॉरिटी है, वहाँ के थोड़ा सा जो बड़े लेवल पे रहते हैं, थोड़ा सा पोजीशन ऊपर हो जाता है, वो अथॉरिट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन हमारा टीम यूनिक है। यहाँ पे फेलो वाले हमारे टीम में 150 वॉलंटियर्स है और बहुत ज्यादा 85 सर्वाइवर्स है एंड ऑफिस स्टाफ भी है भाई भी अलग। हम लोगों की सिमिलरिटी सिर्फ फ्रेंड कनेक्शन है। हाँ, हम लोगों के साथ जो भी आता है वो फ्रेंड ही बन जाता है। चाहे हम लोगों के लेवल जितने भी, हमें अभी अभी पीआर मैनेजर का पोस्ट दिया गया है एंड मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। इसका मतलब नहीं कि मेरे जूनियर स्टाफ को मैं इस हिसाब से बिहेव कर, क्योंकि हमारे सीनियर स्टाफ ने हमें ऐसा कभी सिखाया नहीं। हमेशा एक फ्रेंडली तरह बिहेव किया है। तो मैंने, मेरा काम वही था कि पहले जब मैं ब्लाइंड थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं बोल पा रही थी, तो हेल्प डेस्क मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी काम किया था। देन जब मेरा आंखों का रोशनी वापस आया तो मेरा ड्रीम था कि मैं जिस शहर से, जिस गांव से, जिस स्टेट से मैं पैदा हुई हूँ, मेरा उड़ीसा, तो मैं उस सर्वाइवर्स के लिए काम करूँ, क्योंकि हमारा टीम बहुत छोटा था उस टाइम और वो पूरा इंटरनेशनल में काम कर रहे, पूरा यूपी का ज्यादा केस था उस टाइम, लेकिन उड़ीसा का कौन संभालने वाला भी था, लेकिन टीम प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया एंड आई एम ए सिंगल पर्सन विद दैट हेल्प। मैंने 11 सर्वाइवर्स को 1 ईयर्स में रीच आउट किया, उनको रिहेबिलिटेशन को, उनके ड्रीम पे हम लोगों ने काम किया। उड़ीसा में मैं बढ़िया पहली लड़की बढ़िया। हूँ जो मैंने एसिड अटैक को लेकर अवेयरनेस किया एंड वाह। फाइनली मेरे केस पे सबसे ज्यादा मेरे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री सीएम सर, उन्होंने हम लोगों को, मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। एंड यहाँ का मीडिया बहुत ही अच्छे है, और नहीं, नेशनल मीडिया हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। देन धीरे धीरे एक कोऑर्डिनेटर भी बन गई, एक लीडर बन गई धीरे धीरे। एंड हम लोगों की, मेरा अंशु का और बाकी है, एक दो रितु है, हम लोगों की स्पीकिंग बार बहुत अच्छा होता है, हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मोस्टली हम लोगों को ये भी जॉब दिया गया है कि पब्लिक रिलेशन, क्योंकि लोग हमसे ज्यादा अवेयर होते हैं, लोग हमारी वॉइस से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। अब चांप फाउंडेशन में क्या क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला, हर न्यूज पब्लिक के पास पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट को लेकर, एनी क्राइम को लेकर जो भी नया केसेस आता है, उसको कैसे सपोर्ट मिलेगा, हर तरीके से, हर तरीके से काम सपोर्ट हमें हमें ही करते हैं, लोगों को तक पहुंचता है बातों के जरिए, वीडियो के जरिए एंड मैसेज के जरिए एंड लाइव के जरिए एंड न्यूज के जरिए। उसके बाद अभी मतलब ये काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो आगे जाकर और नया नया रोल मिलेगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है कि हमारी टीम हमें इतना कैपेबिलिटी, विदाउट हम लोगों ने कभी किसी ट्रेनिंग नहीं लिया है सीरियसली, लेकिन हाँ, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने ग्रूमिंग, सॉफ्ट स्किल एंड काउंसलिंग, मुझे अच्छा काउंसलर बनना है। यस, मैं अभी, मेरा ड्रीम है कि मैं अच्छा काउंसलर बनूं। ये तो एंकरिंग, ये तो मेरा पार्ट ऑफ है, मैं डांस करती हूँ, मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुझे अच्छा काउंसलर बनना है ताकि मैं किसी को अपनी बातों से, अपनी अपनी आवाज से सही कर सकती हूँ। मतलब उस, अगर वो इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको हिम्मत दिला सकती हूँ। अगर इंसान कुछ गलत करने वाला है, उसको चेंज कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहे जितने भी लेवल पे रहो, जितना भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं मरूंगी ना, ये कह के ये मर पाऊंगी कि मैंने किसी को, मेरी बातों से, मेरी वर्ड से, मेरी प्यार से मैंने किसी को चेंज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब जिस तरह से द वे एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं और खुद मुझे तो बहुत लगता फॉलो ही है कि करती आपको काउंसलर बनना ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपसे बिल्कुल। देखकर लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा। एक्चुअली तो इसी आपको बनना ही इसी थैंक यू चीज चाहिए। सो में मच। करेक्ट है। प्रमोदिनी, एक एक सवाल, you're asking something, Yash? Go ahead. You नो may. नो, यू आस्क फर्स्ट। ओके Okay, फाइन। okay. I just had a very आप small. पूछिए पूछिए। Okay. So I just had a very क्या small पूछिए। curiosity क्योंकि आपने बोला कि आपको काउंसलिंग में भी इंटरेस्ट है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इन चीजों को काफी
ज्यादा स्टडी मैं करते होंगे, यही है ना? जब पूछने आप वाला था। ये पूछने वाली या थी, देखो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे हाँ सच में हाँ या जानना था आपसे ये चीज, कि जब आप सर्वाइवर्स को अलग अलग जगह से उनको आप रेस्क्यू करते हो और हाँ उनके या साथ आप मिलते मिलते हो और काम करते हो, तो आपको क्या लगता है समाज में जो बाकी लोग होते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है? मतलब आपका क्या अनुभव है इस चीज को लेके? एक्चुअली एक बात बताना चाहूंगी कि हम जब थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाते हैं ना, हम छोटे से छोटी बात को भी इग्नोर करते भूल जाते कि जब हमारे हम्म। पास ये होता है सबके साथ, जब हमारे पास 1,000 रुपया पैसा होता है तो हम 1 रुपया गिर जाता है तो ठीक है, गिर गया तो घर पे कोई उठा लेगा, कोई रख देगा, ऐसा ही सोचते हैं। ये हमेशा किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पायरिंग है कि मैंने 1,000 रुपये के लिए जिस 1 रुपया को मैंने इग्नोर किया, शायद वो 1 रुपया मेरी शुरुआत थी। लाइक क्योंकि जैसे कि जब मैं मतलब चेस करना, मतलब मैं हर छोटी छोटी बातों को मैं इसलिए ध्यान देती हूँ। लाइक मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोवर्स है, हमारे मेरे अंशु के, ऋतु के, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग मैसेज करते, हम रिप्लाई नहीं दे पाते, तो फिर वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है, सबको एक साथ रिप्लाई देना भी तकलीफ हो जाता है। हम लोग वो तुरंत से बोल देते हैं कि आप उन लोग एटीट्यूड वाले हो, भाई सेलिब्रिटी बन गए हो, क्या हुआ, मतलब बहुत ज्यादा गंदे गंदे कमेंट करते हैं। लेकिन मैं उस कमेंट को कभी रिएक्शन नहीं दिया, मैंने पहले उनको अच्छे से समझाया। यही मेरा शुरुआत है कि अगर मैं उनको नहीं समझा पाऊंगी तो मैं इतने लाइव शो में बोल बोल के 1,000 लोगों को क्या फायदा। अगर मैं एक को नहीं चेंज कर पाऊंगी तो मैं उनको अच्छे से समझाती हूँ कि भाई प्लीज आप इस तरह से मत कहिए। मैं कभी गंदे से या गांगरी से, गुस्से में रिएक्ट नहीं करती हूँ। हम लोगों का कुछ बिजी शेड्यूल चलता है या मेरा कुछ टाइम चल रहा है, मुझे विजन का प्रॉब्लम है, मैं डे रिप्लाई नहीं दे पाती, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन तो वो बाद में वो बोलना समझ जाते हैं। वो मुझे, मैं एक माफी मांगा, उसने मुझे 100 माफी मांगता है। ये है शुरुआत। हाँ, मैंने बताया ना, अगर हम हमारे पास जब 1,000 रुपया आ जाता है, हम 1 रुपया को इग्नोर कर देते हैं। हमारे जीवन में हर छोटे छोटे बात को हमें चेंज करना चाहिए। इट्स अ वेरी ठीक इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबके या सोच में रहना चाहिए। जब हम शुरुआत छोटे से लेकर करेंगे तो बड़े चीज को हम आराम से इजीली शुरू चेंज कर पाएंगे। ये काउंसलिंग का मैंने कभी, मुझे कोई ट्रेनर सही ने ये बात। बात नहीं बताया है, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद गेम किया है। और जीवन में अगर आप चाहोगे तो बहुत चीजें आप खुद ही गेम कर पाओगे एक्सपीरियंस। ठीक। और मेरा जो एक सवाल है कि आप शीरोज, आपका लाइफ का एक बहुत बढ़िया सवाल है, पर ये बढ़िया चीज है, पर आपको क्या लगता है कि शीरोज कैसे आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है और आइडेंटिटी जो है वो ठीक करने के लिए कोशिश करता है शीरोज? सिरोज एक हम लोगों का जरिया है, सिरोज हम लोगों का की हैंड है। मतलब सिरोज के बिना, एक होता है ना, हम सिरोज के उंगली या हाथ, सिरोज हमारा एक शरीर है। और चाम फाउंडेशन उसका एक दिमाग है भाई। हम लोग उसके पैर और उंगली और उसके सब बॉडी के पास है। सिरोज नहीं होता, सिरोज प्रोजेक्ट नहीं शुरू होता, चाम फाउंडेशन ने अपना दिमाग लगा के नहीं करता, तो शायद हम लोग, शायद पता नहीं कहाँ होते। क्या होता है हम लोगों का हालात, कितने लोगों के ट्रीटमेंट रुक जाता है, कितने लोगों के जीने की सारा मतलब बंद हो जाता। ये कोशिश कहीं भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें मैं दोष दूंगी तो बहुत सारे लोगों को भी दोष दे सकती हूँ, क्योंकि ये सब सिरोस को क्यों करना पड़ा, चाम को क्यों, क्योंकि हम लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। सरकार ने नहीं किया इसलिए मतलब जनता भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कि हमारे समाज में कभी कुछ भी बड़ा क्राइम होता है, जब वो मीडिया में आता है, हम उसके ही पीछे हमेशा भागते रहते हैं। और मतलब उस टाइम तक, जब तक वो मीडिया में हाईलाइट होता है, उस टाइम तक हम सरकार का आवेश करते हैं, कानून का आवेश करते हैं। लेकिन हमें आवेश नहीं करना चाहिए, हमें कानून का आवेश नहीं करना चाहिए। कानून हम लोगों के लिए बनी है, सरकार सरकार का हम लोगों ने बनाया है। उसकी व्यवस्था को, उसकी न्यायालय को चेंज करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज की जनता नहीं सुनते हैं। उस टाइम तक वो आवाज उठाते, लेकिन वो ये नहीं सोचते हमारी इंडिया में, इतने बड़े आबादी में, इतने करोड़ों लोग हैं जो, जिनके माँ बाप उनके बच्चे के लिए न्याय मांग रहे, तरफ रहे, रो रहे। ना उनके पास तक कोई एनजीओ एनजीओ कनेक्ट हो पाते, ना उनके पास कोई मीडिया कनेक्ट हो पाते। भाई हम लोग मीडिया में आकर भी हम लोगों को सरकार मदद नहीं कर रहा है। तो उनके बारे में हमेशा एवरीडे हमें आवाज उठाना चाहिए। सिर्फ एक के लिए नहीं, रोज उठाना चाहिए। हमें वजह नहीं ढूंढना चाहिए
हमें Correct. सॉर्ट आउट करना चाहिए कैसे वो जिएंगे। हमें वजह ये नहीं ढूंढते कि किसने किया, कहाँ पे किया, बस इतना ही है ना। उसके बाद जिसके साथ ये कानून का क्राइम होता है वो कैसे जिएगा, ये कोई नहीं सोचा। ये चाम फाउंडेशन ने सोचा। 2013 में मिनिस्टर लेवल पे भी ऐसे डाक्टर को कभी किसी ने बात नहीं किया। 2013 में इंडिया में पहली बार हमारे चाम फाउंडेशन ने आज तक मुद्दे पे लॉ आया, जो मतलब उन्होंने आवाज उठाया, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। उसके बाद जब लक्ष्मी दीदी के पीएनएल में लॉ आया तो लोग बहुत ज्यादा जानने लगे, जागरूक होने लगे। उससे पहले कोई इसको क्राइम नहीं समझ पा रहा था। इस बिका जब दो कारण है, इधर अगर न्यूज में आता था तो हमारे चेहरा को ब्रॉड किया जाता था, लोग समझते नहीं थे। तो हम लोगों ने मीडिया के अगेंस्ट में गए कि आप लोग हमारे चेहरा क्यों ब्रॉड करते हो। अगर हमारे चेहरा नहीं देखेंगे लोग दर्द कैसे समझेंगे। लोग देखने देखने में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो चांपडेस ने उस हिसाब से काम किया और सिरोज आज इतना हम लोगों का एक मतलब सही में हम लोगों के जीने के एक वो एक हार्ट है। हम लोगों के इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट, हम लोगों की इनकम, हम लोगों की जो बहुत सारे सर्वाइवर्स उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी असीरोज मोस्टली सर्वाइवर की ड्रीम पे काम करते हैं। जो अटैक के बाद ये सोसाइटी, ये लोग भूल जाते हैं कि एक अटैक के बाद एक सर्वाइवर की ड्रीम है, वो जीना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उसका ड्रीम को वो कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन इसको किसी ने नहीं सोचा, इसको चाम फाउंडेशन ने सोचा। एंड चाम फाउंडेशन ने इस हीरोज के माध्यम से ये आज कर रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए कई कई स्टेट में 1,000 2,000 है, मुझे नहीं पता सबको मिल रहा है, लेकिन मोस्टली सबके अकाउंट में पेंशन आते हैं आफ्टर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालने के बाद 500-700 रुपया। अब सोचो मेरी एक दवाई, मैं पर्सनली मेरी बात, एक दवाई कुछ नहीं 500 होता, रुपीज होता है। कुछ नहीं होता। फिर मेरा 15 डे का बहुत दवाई कुछ नहीं। 4,900 समथिंग होता है, तो 500 में क्या हो जाएगा। सरकार को एग्जैक्टली। जागरूक करना हम लोगों के काम है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वजह तो मत ढूंढो, आप सट क्या आउट कोई करने की। मेजर्स ले रहे हो इसके बारे में? Bias, I think we will हाँ, ये continue बात with this या conversation. या Pramodini ji, I या just want to ask you, मतलब क्योंकि 8 बज रहा है तो शायद से आपको और अभी आपको जाना यस, होगा। मुझे मतलब जाना हाँ है। यस, शायद से, हाँ, हाँ हाँ। ठीक। तो मतलब हम अगर रख पाते तो पूरे रात ही इस लाइफ को हम कंटिन्यू कर एग्जैक्टली। सकते हैं, इतनी सारी चीजें आपको नहीं, जानने मेरे को दोस्त मिलेंगी। अंशु है ना, अंशु डली, अंशु बहुत ही अच्छे से और डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंशु सर, हम जारी रखेंगे। बस आप जाने से पहले एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि एक कमेंट आई है आप लोगों के लिए। एक जन ने कमेंट किया, भी देखा, कि थैंक यू मैम, कीप अप द गुड वर्क, यू आर एन इंस्पिरेशन। सो यू थैंक यू सो एक्चुअली आर, मच। आप सच में इंस्पिरेशन हो, हम दोनों के लिए तो हो ही, बन ही गए हो आप, और सबके हाँ, लिए हो। तो पूरी थैंक यू तरह वेरी से। मच प्रमोदिनी, पूरी तरह से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रमोदिनी, थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। फॉर थैंक यू सो हैविंग मच मी। गाइज, एंड आई एम सॉरी फिर मैं बीच में ही जा रही क्योंकि बहुत थोड़ा सा एक कोई बात इवेंट है। नहीं, कोई बात नहीं। गाइज एंड लास्ट डे जाते जाते मैं एक बताऊंगी कि हमेशा महिलाओं को रेस्पेक्ट देने की बात होती है, बट हम रेस्पेक्ट नहीं चाहते, हम दया नहीं चाहते, हमें कोई भगवान माने हम नहीं चाहते, कोई देवी का आख्या दे नहीं चाहते, बस इंसान मानिए, इक्वालिटी लाइए। हमारे समाज में जब इक्वालिटी की ग्रोथ होगी तो हमारे समाज में बहुत कुछ होगा। और एक बात कि आज के यंग जनरेशन में मतलब सीक्रेट एक चीज होता है, सक्सेसफुल, हर कोई सक्सेस होना चाहते हैं। अच्छा रास्ता चुनो, सक्सेस हो, कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान मत करो। थैंक यू सो मच, लव यू थैंक गाइस। यू, थैंक यू, थैंक यू सो टेक केयर, मच। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। Yes, ओके, would you like तो to take हम it? अंशु, जो तो प्रमोदिनी जी कह रहा था कि कह रही थी कि गवर्नमेंट क्या क्या रोल है इसमें, मतलब आपको क्या लगती है कि कैसे निभाना चाहिए? थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू व्यास मैम। मुझे मैम परस्पर बोलने की मैगजीन के, कोई जरूरत मैम नहीं मत है। बोलिए। मैम मत अच्छा बोलिए। लगता है। परस्पर मैगजीन के माध्यम से हम लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला। और जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट को मैं पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मतलब कि जब किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है ना, तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना रखे हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए हों।
और उनको अच्छा हॉस्पिटल, मतलब उनको अच्छा ट्रीटमेंट और उनको अच्छा मतलब बेहतर चिकित्सालय के रूप में उनको मेडिसिन मिल सके। जब किसी के ऊपर अटैक होता है ना, प्रॉपर वो गांव से लड़कियां होती हैं और उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलते, जिसके कारण वो इन्फेक्शन हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है, वो लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको कुछ कुछ लाख रुपीस कंपनसेशन देके वो अपना हाथ साफ कर लेती हैं। लेकिन गवर्नमेंट को का रोल ये होना चाहिए कि जब किसी के साथ एसिड अटैक होता है तो उसको अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, और कोर्ट में जो मतलब कि एक तो पहले सर्वाइवर्स के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो चुका होता है, फिर वो मतलब कि दिन पे दिन जाके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है। तो हमारे मतलब कि हमारी सोसाइटी में, हमारे भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए कि जल्दी से जल्दी केस में से डिसीजन आ जाए, क्योंकि पहले वो मतलब सोसाइटी के ताने सह रही होती है, क्योंकि सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी के ताने सह रही होती है, हॉस्पिटल जाने होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होते हैं, तो फिर वो अपना आगे का कैसे बढ़ाएगी, और तब कि उसके पास कोई बिल्कुल। सपोर्ट भी नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट को एक सर्वाइवर के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा कोटा रखना चाहिए कि मतलब कि जिसमें सर्वाइवर अपना रह के अपना भविष्य बना सके, क्योंकि मतलब कि जैसे मतलब छाव फाउंडेशन है तो काम किया है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, उनको एक नई जीने की राह भी दिखाई है, उनका उनका भविष्य संवारा है। लेकिन जो काम गवर्नमेंट का था वो छाव फाउंडेशन ने किया, गवर्नमेंट को भी तो कुछ करना चाहिए ना। गवर्नमेंट को तो ये भी नहीं बिल्कुल पता होगा कि एक एसिड अटैक बिल्कुल। सर्वाइवर की स्टोरी क्या है, हमारे सोसाइटी में कितने केस होते हैं, हर दिन कितनी सर्वाइवर्स मर जाती हैं, गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता है। ठीक ठीक। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे मतलब सच में बहुत ही सच है जो आपने कहा अंशु। और सबसे पहले तो ये बात सबसे कहना जरूरी है कि अंशु जो काम करती है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक काम, वो एक रोल निभाती है इस संस्था में। अंशु का रोल है रीच आउट ऑफिसर का, राइट अंशु? यस मैम। हाँ हाँ। तो रीच आउट ऑफिसर की तरह वो काम करती है। जितने भी सर्वाइवर्स है जहाँ पे भी है उनके पास पहुंचना, उनको सारे फैसिलिटीज जितनी जरूरतें हैं उनकी सारी चीजों को पूरी करना, ये उसकी फर्ज है जो वो बहुत ही अहम तरीके से निभाती रहती है। अंशु, इसके रिलेटेड हमारे एक्चुअली बहुत सारे सवाल है आपसे, हम एक एक करके आएंगे आपके पास। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे देश में और इन लोगों को क्या डे टू डे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, आपसे बेहतर शायद ही हमें कोई बता सके इसके बारे में। तो पहला चीज, एक घटना हमने सुनी थी गोंडा में जो ऐसे अटैक हुई थी, तो आप वहां पे थे और उनके सर्वाइवर्स को आप लेके आए थे हॉस्पिटल में। तो आपकी क्या 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 मतलब चैलेंजेस रही है उस सिचुएशन में और क्या आपकी अनुभव था पूरे? या आपने गोंडा केस पे चर्चा की है तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। अभी 13 अक्टूबर को ही गोंडा में 3 सिस्टर के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और एसिड अटैक करने वाला उनका गांव का ही था, और मतलब वो घर पे सो रही थी और सोते उनपे मतलब एसिड अटैक हुआ था। जो बड़ी बहन थी वो 17 साल की थी, उनका नाम खुशबू है, तो वो काफी गंभीर रूप से झुलस गई थी, और जो छोटी छोटी सिस्टर थी उनकी वो उनके पास में सोई हुई थी। तो मतलब भगवान का शुक्र है कि उनपे ज्यादा मतलब बर्न नहीं हो पाया है। बाकी जब हम लोग मॉर्निंग में गए थे तो गोंडा के ही मतलब जिला चिकित्सालय में वो एडमिट थी, और जब हम लोग गए थे तो वहां पे उसको कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। जब हम लोगों ने देखा तो मतलब कोई भी आके उसको छू रहा था। सबसे पहले जब एसिड अटैक होता है तो उसको इन्फेक्शन का बहुत डर होता है। तो मतलब, और जैसे कि हम लोग कोरोना जैसी महामारी में इससे अभी कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो वहां पे ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, ना ही डस्टबिन की व्यवस्था थी, और ना ही मतलब किसी का टेम्परेचर नापा जा रहा था। कोई भी बाहर से आ रहा है और खुशबू से मिल रहा है और जा रहा है। तो ऐसे में मतलब उसकी हालत और गंभीर हो रही थी, और उसका पूरा फेस जो है वो स्वेलिंग हो गया था। और मतलब कि जब एसिड अटैक होता है तो उसको मतलब सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने पे उसकी आंखें जाने का भी खतरा होता है, उसकी पूरी स्किन डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए मतलब कि हम लोगों ने, जब हम लोग गए, छाव फाउंडेशन टीम गई वहां पे, तो हम लोगों ने उनको डिस्चार्ज कराया और हम लोग लखनऊ लेके आए। उसके बाद मतलब उनके जो गांव वाले थे तो वो काफी पॉलिटिक मुद्दा बनाए हुए थे उसको, वो लोग वहां से जाने नहीं दे रहे थे। तो वहां से हम लोगों ने काफी मतलब संघर्ष किया, काफी झगड़ा किया, क्योंकि उसका जो दर्द था खुशबू का
वो लोग नहीं देख पा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि यहीं हम लोग इलाज कराएंगे और मतलब यहीं पे मतलब जो होगा हम लोग देख लेंगे और हम लोग लखनऊ नहीं भेजेंगे। लेकिन जिस सिचुएशन से गुजर रही थी उस सिचुएशन से मैं आज भी गुजर रही हूँ। आज भी मेरी सर्जरीज होती हैं, तो इसलिए उसका मतलब कि जो उसके जख्म थे, जो उसके मतलब बहुत सिचुएशन थी, उसको मैं महसूस कर सकती थी, उसको मैं बेहतर तरीके से समझ सकती थी। तो हम लोगों ने वहां पे मतलब कि काफी डॉक्टर वॉक्टर को मनाया, जो वहाँ के विधायक थे उनको मनाया। फिर उसके बाद हम लोग खुशबू को लखनऊ में लेकर आए और अभी मतलब कि पूरी तरीके से ठीक नहीं कहेंगे वो मतलब कि, लेकिन पहले से बेटर है और उसका अच्छा इलाज चल रहा है। और हर दिन मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, फॉलो अप कर रही हूँ, हर दिन मिलती हूँ, काफी अच्छी दोस्त बन गई है मेरी और फोन पे भी बातें होती हैं। तो मतलब कि क्या होता है ना कि मेंटल 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 तौर से हम लोगों को सर्वाइवर को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब मतलब गांव वालों का क्या रोल होता है ना, या घर वालों का भी, कि जब लड़की पे हादसा होता है तो हमारी इंडिया में हमारे फेस को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है ना कि और कुछ है ही नहीं, मतलब खूबसूरती ही सब कुछ है। तो जब एसिड अटैक होता है ना, तो मतलब उसको मेंटल तौर पे हम लोग तैयार नहीं करते हैं। वो गांव की 4 लोग औरतें आके उसके मुंह पे ही बोल रही थी कि इनका फेस खराब हो गया है, अब तो इनको मर जाना चाहिए, और अब जी के क्या करेंगी, शादी टूट जाएगी और शादी कौन करेगा, वो इस तरीके से बोल रही थी। लेकिन हम लोगों ने उसको उसके जो हादसे के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। हम लोग उसको एकदम दोस्त की तरह रखते हैं, प्यार से बात करते हैं। और शायद वो इतने अच्छे से अपने घर वालों से बात नहीं करती जितने अच्छे से हम लोगों से करती है, क्योंकि हम लोग उसका दर्द समझते हैं। तो मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए कि घर वालों को भी एक सर्वाइवर्स का दर्द समझना चाहिए। बहुत सारे घर वाले साथ नहीं देते हैं सर्वाइवर्स का, जैसे कि उसकी ही गलती हो। अरे एसिड अटैक करने के लिए वो खुद थोड़ी ना कहेगी तुम आओ और मेरे ऊपर एसिड की बोतल उड़ेल दो, क्योंकि कोई लड़की ऐसा नहीं चाहेगी। तो इसलिए घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि एक लड़की के साथ या तो रेप होता है या एसिड अटैक होता है या शोषण होता है, किसी भी प्रकार का क्राइम होता है, तो उस सर्वाइवर्स को तुम जाके मेंटल तौर पे सपोर्ट करो और पूरी तरीके से सपोर्ट करो, ना कि उसको अकेला छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंशु, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आपने कहा, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी चीज पे इनफैक्ट मैं मतलब सोच रही थी कि डॉली जी की कहानी जब मैं देख रही थी, मतलब आपके बारे में भी, मतलब मैं अभी डॉली के पास थोड़ा आना चाहूंगी इसी चीज को लेके जो अंशु ने कहा कि इतना ज्यादा रेलिवेंट है जो भी अंशु ने बोला कि लोगों का माइंडसेट जो है उसके साथ दिन दिन भर आपको डील करना पड़ता है एज अ सर्वाइवर और एज अ सोशल वर्कर, राइट। तो बहुत मुश्किलें आप झेलते होंगे, आपका जो स्ट्रगल है डॉली, स्पेशली आपके लिए, आप जब बहुत ही छोटे थे, मतलब आप बहुत ही माइनर थे, तब आप 13 साल के थे शायद जब आपके साथ हादसा हुई, और उसके बाद से आपकी जो ये बहुत बहुत ही बढ़िया और इंस्पायरिंग स्ट्रगल रही है। अगर आप थोड़ा सा इस पे कुछ चीजें, आपकी अनुभव थोड़ा सा अगर आप शेयर कर पाए। जी जी, मतलब मेरा नाम डॉली है, मैं आगरा से ही हूँ। और मतलब मेरे ऊपर अटैक 2013 में हुआ था, जब मैं 13 साल की थी। तो मतलब मैं स्कूल पढ़ने जाती थी, तो एक लड़का था, 35 साल का था, नाम मुझे नहीं पता था। तो मुझे छेड़ता था, बदतमीजी करता था मेरे से। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी ने उसको डांटा कि मेरी लड़की को क्यों परेशान करता है। तो फिर उसको पता नहीं क्या बात बुरी लगी, तो उसने मेरे घर पे, मेरी मम्मी काम करने गई थी, घर पे कोई था नहीं उस टाइम। तो घर पे आया एकदम और मेरे फेस पे, मतलब मेरे से बदतमीजी करने लगा। तो मैंने बोला जाने के लिए, तो एकदम से उसने मेरे फेस पे एसिड फेंक दिया। और उस टाइम मतलब मेरे फेस पे पूरा जलन मचने लग गया, क्योंकि उस टाइम मैं खुद ही 13 साल की, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ उस टाइम। तो फिर मेरे जो नीचे मकान मालिक थी, तो उन्होंने मेरे फेस पे पानी डाला, फिर सब लोग आए, तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में भी मुझे मतलब बाहर निकाल दिया, कह रहे इनको नहीं, यहाँ पे नहीं भर्ती करना है, यहाँ जे केस हम लोग लेते नहीं है। मतलब मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं ले रहे थे उस टाइम, मुझे सब लोग मतलब हर कोई निकाल रहे थे। तो फिर जीजी नर्सिंग होम है, तो उन्होंने मुझे मतलब लिया, फिर वहां पे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जानती थी उनको, तो इसलिए उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे इमरजेंसी में भर्ती किया वहां पे। तो मतलब चेहरा पूरा जी। हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी।
बोलिए नहीं आवाज नहीं आ रही है कुछ मेरी? नहीं, बताइए आ रही बताइए आ रही आ बताइए। रही आ रही। मुझे लगा मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, सॉरी। नहीं हाँ, नहीं। तो फिर मतलब हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया। मतलब मैं 20-25 दिन हॉस्पिटल में रही थी। और हॉस्पिटल मतलब हम लोग ज्यादा पैसे घर से नहीं है कि हम लोग के बड़े हॉस्पिटल अपना इलाज करा सके। मतलब नॉर्मली करवा रहे थे हम लोग। और मेरा पूरा चेहरा ऐसा हो गया, मेरे आइस भी चले जाती, तो वो तो जी नर्सिंग हॉस्पिटल में आइस में मेरे में तुरंत पानी डाल दिया गया। तो इसलिए मेरे चेहरे पे मतलब जल्दी मैं आइस नहीं जा पाई भगवान की कृपा से। तो हम्म। मतलब मैं जब हॉस्पिटल से अपने घर गई तो सब लोग कह रहे हैं इसका चेहरा खराब हो गया, अब ये क्या करेगी, इससे अब इससे से कोई मतलब शादी नहीं करेगा, अब ये घर पे रहेगी। मतलब मेरे से घर में कोई रिश्तेदार भी आता है या कोई आता है तो मम्मी से कहते थे पहले इसको दूसरे रूम में भेज दीजिए, तब हम आपके दूसरे रूम में आएंगे। तो मतलब कोई मेरे आगे नहीं आता था, फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं भी अपने दूसरे रूम में रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मतलब एक साल में 2014 में मैं बिल्कुल किस घर से बाहर नहीं निकली, यहाँ तक कि मैं अपनी बहन की शादी में मैं घर से बाहर नहीं निकली। मेरी बहन की शादी चल रही थी और मैं ऊपर छत पे बस रो रही थी, मैं सोच रही मैं अपनी बहन की शादी में जाऊं, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है अपनी बहन की शादी में डांस करे, मतलब मत होता है ना शादी में जाए अपने में। तो मैं अपनी बहन की शादी एंजॉय भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। फिर 2015 में मुझे कैफे के बारे में पता चला, सिरोज हैंगआउट के बारे में। तो मैं यहाँ पे आई तो मैं अपना फेस पूरा कवर करके आई थी फर्स्ट टाइम। तो मतलब जब मैं कैफे में फर्स्ट टाइम आई तो मैं पूरा फेस पूरा ऐसे कवर करके, तो सब दीदी लोगों ने मिला, बोल रहे आप फेस क्यों कवर कर रखे हो। तो बोला मैंने दी मेरा फेस अच्छा नहीं है इसलिए मैं कवर करती हूँ। तो बोले आपको फेस नहीं कवर करना चाहिए, फेस उसको कवर करना चाहिए जिसकी गलती है, आपकी नहीं है। तो फिर उस दिन से मैं आज तक फेस कवर नहीं करती। तो फिर मैं अपने घर पे गई तो मैं फेस ओपन करके गई थी। तो गली में सब लोग देख रहे थे कि ये आज ऐसे घूम रही है। तो मैंने बोला दीदी को, दीदी मुझे पार्क जाना है। तो दीदी बोल रही चल। तो मैं पार्क जाने के लिए मैं जैसे ही मतलब बाहर निकले तो एक लड़की बोली देख कैसे भूतनी सी लड़की जा रही है। तो मतलब उसका रिएक्शन देख के मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब मुझे मैं कह रही क्या करूं, मैं क्या करूं, उस टाइम मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम, क्योंकि मुझे तो मेरी बहन ने बोला कि उसकी बातों पे तू ध्यान मत दे। और मतलब कोई अच्छा बोलता है तो कोई बुरा भी बोलता है। हम्म। आजकल की दुनिया दो टाइप की दुनिया होती है, मतलब कोई अच्छा भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। जी तो अच्छे पे जी। ध्यान दे। तो फिर मैं अपनी बहन की बात सुन के फिर मैं सीधे चली गई। फिर मैं किसी की बात पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं अब मुझे आगे बढ़ना है, मैं ये सोचती हूँ बस मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। मैं अपने आप में अच्छी लगती हूँ, मैं अपने आप में सुंदर हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो बिल्कुल, आप इसलिए मैं बहुत हमेशा सुंदर है। क्या? तो इसलिए मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपने आप की सुनती हूँ। और मुझे मतलब मैं हमेशा पहले अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ और हमेशा दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। वेरी नाइस डार्लिंग, बिल्कुल। मतलब वेरी यू आर नाइस। वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे। और यू आर। और एक चीज, और हम्म, प्लीज प्लीज, यस। मेरा जो एक सवाल है कि अंशु जी ने भी कहा है कि अभी जो एक कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो इसके बारे में अभी आप कैसे डील कर रहा है ये सब चीजें, मतलब शिरोज कैसे ये सब चीजें डील कर रहा है? हाँ, और वैसे मैं शुरू में ही जॉब करती हूँ तो मतलब अभी कोविड क्यों टाइम कोविड। जी। क्या कोई न्यू इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने? तो यही न्यू इनिशिएटिव मतलब क्या कोई लिया है? मतलब कोई भी जो जस्ट टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन। हाँ, नहीं क्योंकि मतलब शायद, ऐसा। हाँ, जी, बोलिए नहीं बोलिए आप बोलिए। नहीं, हम ये सोच रहे थे क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन में हमको सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे ओके, जितने भी एम आई ऑडिबल? बिजनेस, यू आर श्योर, ओके ओके फाइन। जितने भी बिजनेस या ऐसे कुछ भी चीजें चल रही है ना, तो थोड़ा बहुत सारी चीजें अभी तो लॉस में रन कर रही है। एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना ये। तो अगर जी। आप इस सिचुएशन में कुछ नया कर रहे हो, कुछ नई इनिशिएटिव आपका अगर है, अगर उसके बारे में भी हमें थोड़ा आप बताओ। जी ओके। मतलब लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग सब तो घर पे ही थे, तो फिर हमारे स्रोत हैंगआउट मतलब कैफे ने स्रोत ने हमारी टीम ने बोला, छाव फाउंडेशन ने, क्यों ना हम सब लड़कियां जब घर पे है ही हैं तो कुछ ऐसा करें जो जो लोग आगे बढ़ रही हैं तो कुछ चीज सिखाए। जैसे किसी को डांसिंग सीखना था, डांसिंग की क्लास होती थी, किसी को इंग्लिश सीखनी थी, मतलब लॉकडाउन में जिसको जो भी था सबकी सबको सब कुछ सिखाया जा रहा था।
तो सब लोग लड़कियां सीखती भी थी, मैंने भी सीखा, डांस भी सीखा, इंग्लिश भी सीखती हूँ मैं भी मोस्टली। और फिर हमने अभी जी, और फिर बीच में अभी हम लोगों ने मतलब नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, डॉट स्टोरी। तो मतलब जी उसमें क्या So can होता you है? tell me more about हाँ dot story? So जी, what तो is it? उसमें हम मतलब जैसे दीपावली आ ही रही है, मतलब फेस्टिवल आ रहे हैं इस टाइम, तो हम लोगों ने बोला अच्छा मतलब ऐसी कुछ चीज करते हैं फेस्टिवल के टाइम पे, तो मतलब हम लोगों को सपोर्ट मिले। और क्योंकि अभी कैफे स्टार्ट हो चुका है और कैफे में कोई गेस्ट नहीं आ पाते हैं, अभी कोई हम लोग किसी से नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक स्टोरी स्टार्ट किया है, गिफ्ट स्टोरी। तो उसमें हम लोगों ने गणपति जी हम लोग खुद बना रहे हैं, मैं भी नोएडा पे ही हूँ इस टाइम, तो मैं भी अच्छा थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ, यहाँ पे पैकिंग होती है। मतलब गणपति जी हैं और लक्ष्मी गणेश जी, दिए, मतलब हमने बहुत क्यूट क्यूट बना रखे हैं, हम लोग खुद ही बनाते हैं सब लोग। तो वाह मेरा मतलब मैं खुद बनाती हूँ, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं वो देखने में भी, और जब फिर उनको पैक करते हैं ना तो वो और ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो मतलब हम लोगों ने जी, तो मैं आपको दिखाती, पर अभी मैं ऊपर हूँ, मैं आपको दिखाती ना, जी गणेश जी कितने बिल्कुल बिल्कुल। cute से हैं। बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, तो इतने दिखाइए क्यूट से दिखाइए बहुत ज्यादा अच्छे। जी, दिखाइए। तो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने ये चीज लिए, तो मतलब हम लोगों को भी सपोर्ट मतलब जैसे आप खरीदोगे मतलब लोगे गिफ्ट मतलब दीपावली के अपने लिए, तो आप लोग अपने घर के लिए तो लोगे, आप लोग हम लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हो उससे। बिल्कुल तो हाँ इसलिए मतलब हमारे साउंड फाउंडेशन हम ने कोशिश यही करेंगे, सोचा। या जी हम जरूर। कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच साले। इसी का मतलब कंटिन्यूएशन थोड़ा सा के पास आना चाहूंगी कि एक सवाल मतलब रह गया था आपसे पूछना, वो बहुत मतलब कल ही हम इनफैक्ट मैं रिया से बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये सवाल हम जरूर पूछेंगे आपको मौका मिले तो वो थोड़ा इस बारे में था कि आपको बहुत सारे विक्टिम्स को लेके, सर्वाइवर्स को लेके आपको कोर्ट वगैरह पे जाना पड़ता है राइट, क्योंकि उनकी जो कंपेंसेशन गवर्नमेंट से उनको मिलना चाहिए या जो भी उसके बाद का लॉ जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके कारण कोर्ट वगैरह हर जगह आपको जाना पड़ता है। तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है, मतलब कैसा एग्जैक्टली रहता है? हाँ मैं अपने कोर्ट जब मेरा केस चल रहा था तो मैं उसका एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। बाकी जो मतलब सर्वाइवर्स के कोर्ट के लिए जैसे किसी के केस में एफआईआर दर्ज नहीं होती तो वो पूरा डिपार्टमेंट हमारे दुर्गा सर देखते हैं, तो उस बारे में आपको सारी जानकारी वो ही दे पाएंगे। और मैं पहला क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहूंगी। आपने एक क्वेश्चन किया था डॉली से, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। तो हाँ जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे 2 कैफेज हैं और वो रेस्टोरेंट हैं और उनको एसिड सर्वाइवर ही रन करती हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और उसमें मतलब कोविड चल रहा है, कोविड-19, तो उसमें लॉकडाउन लगा था जिसमें कि हमारे कैफेज दोनों बंद कर दिए गए थे। सर्वाइवर्स काफी जी लंबे जी टाइम तक अपने घर पे ही थी, हमारा सिर्फ कोई अर्निंग नहीं कर पा रहा था। और बहुत सारे सर्वाइवर्स जी ऐसी हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट है सिरोज हैंगआउट पे ही। तो ऐसे में सोचा गया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सर्वाइवर्स फिर से इस चीज से उभर सके, क्योंकि अभी भी जो हमारा सिरोज हैंगआउट लखनऊ है वो भी ओपन कर दिया गया है और आगरा भी ओपन कर दिया है, लेकिन पहले के जितना वो 10% भी अर्निंग नहीं कर पा रहा है। तो मतलब लॉकडाउन में जो हमारी काउंसलिंग थी वो बंद हो गई थी, जो हमारी एजुकेशन थी वो बंद हो गई थी, जो नए रीच आउट थे हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने अभी एक गिफ्ट स्टोरी करके नया इनिशिएटिव लिया जिसमें कि हमारे हमारी कुछ सर्वाइवर्स हैं जो नोएडा में हैं और वो गिफ्ट्स बना रही हैं। तो वो वहां पे मतलब जैसे दिवाली का ओकेजन आ रहा है तो उसमें हम लोग अपने हाथों से ये स्टोन और कैंडल्स, चॉकलेट्स और कुकीज हम लोग हैंडमेड्स बना के और हम लोग सेल कर सकें, ताकि हम लोग मतलब कि पहले जितना लोगों को स्टेबल कर सकें। और हम लोग 30 सर्वाइवर्स को जॉब करती हैं
और उसके अलावा हम लोग और सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं, तो हम लोग उनको भी इंडिपेंडेंट बना सके और उनको भी मतलब कि एक नए प्रोजेक्ट पे ला सकें। तो हम लोगों ने एक स्टोरी अभी लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 5 नवंबर को ही। तो आप सभी लोग जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोग जाइए एक गिफ्ट स्टोरी डॉट स्टोर पे जाके आप लोग शॉपिंग करिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि इस दिवाली को हम लोगों को नया कुछ खास बनाना है। और बाकी आपके और जो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपने जो पहले क्वेश्चन किया था शायद उसका रिप्लाई मैंने नहीं दिया था। बाकी मेरे बारे में जो आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. I mean, I request everyone to Okay, whoever so is watching. can you, Anshu ji, can you please just repeat the website name? Then it will Yeah, be easier for all of us to just आप go एक and बारी buy. वेबसाइट के नाम फिर से बता दो ताकि हम भी अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट कर सकें। हम भी एक दिवाली में गिफ्ट स्टोरी डॉट स्टोर, एक गिफ्ट स्टोरी डॉट स्टोर। ओके ठीक है, ओके। यस मैम, तो आप सभी अंशु लोग जी, जाके मेरे मन जरूर में शॉपिंग कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंशु जी, मेरे मन में एक सवाल है। मतलब ये जो हादसा आपके साथ होता है, मतलब ये थोड़ी कड़वी है, कुछ माइंड मत करना, क्योंकि आपके फेस पहले होता है, फिर डिफॉर्मेशन के बाद कुछ चेंजेस आता है आपके फेस पर। तो पहले तो आपके एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ रहता है आपके साथ, आधार कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड, लाइक दैट। बट ये हादसा होने के बाद आप क्या वही यूज करते हैं और फिर आप चेंज करते हैं वो चीज, लाइक करना पड़ता है? तो इट्स जस्ट अ क्वेरी, यू कैन और कैन नॉट आंसर दैट। जब एसिड अटैक होता है ना, तो वो सिर्फ एक बार नहीं, पूरी लाइफ ही चेंज कर देता है। जो मतलब कि मैं 2014 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मैं उस टाइम पे 15 साल की थी, और जो मैंने 15 साल से पहले जिया था वो मेरी लाइफ कुछ और थी, और जो जब एसिड अटैक हो गया उसके बाद कुछ और है, और मुझे नई पहचान भी मिल गई। जैसे मेरी बैंक डिटेल्स थी उसमें मुझे अभी का फोटो लगा हुआ है, मतलब पहले का मेरा कुछ भी नहीं चलता है, आधार कार्ड वगैरह है, पहले का नहीं है, अभी का है। बाकी जब मैं फर्स्ट टाइम बैंक गई थी तो मतलब कि काफी दिक्कत आई थी, क्योंकि वो लोग मतलब प्रूफ ही नहीं कर रहे थे कि मैं ही हूँ। तो फिर मतलब कि काफी सारा मतलब कि क्या बोलते हैं, पेपर वर्क करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फोटो बदलवाया, फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू अकाउंट चला। तो यही है कि अटैक होने के बाद पूरी ही मतलब एंटिटी पूरी पहचान ही चेंज हो जाती है। जी जी जी। हाँ, एक एक सवाल था मतलब अंशु की, हम जब मतलब हम जैसे आम लोग, मान लो हमारे सामने कोई अगर ऐसे कोई हादसा हो रही है, हमने हमारे सामने कोई एसिड अटैक हो रही है, तो हम क्या उससे हाँ एग्जैक्टली क्या मेजर्स ले हम सकते क्या हैं, मेजर्स मतलब हम ले सकते हैं actionable क्या हो जो सकता है हम हमारा? रोक पाए इस हाँ, हादसे को, रोकथाम या या फिर इमीडिएटली अगर हादसे के होने के बाद भी हम क्या क्योरिंग मेजर्स ले क्या सकते चीजें हैं? कर पाए आप अगर थोड़ा गाइड कर पाओ हमें। हाँ, अगर आप ऐसा कोई हादसा देखते हो तो सबसे पहले मतलब कि पहले तो मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी के ऊपर भी इस प्रकार का हादसा हो, ये घिनौना क्राइम हो। तो लेकिन 1% होता है, तो आप उस पे बहुत सारा पानी डाल सकते हो। जितने से ज्यादा आप जितना पानी डालोगे तो उतना ही इफेक्ट कम होगा। फिर उसके बाद आप मतलब पुलिस में कंप्लेन करा सकते हो, और उसके बाद जैसे कि हमारी फाउंडेशन, मैं नाउ टाइम की बात कर रही हूँ, हमारी फाउंडेशन है छाव फाउंडेशन, और उसको मदद की जरूरत है तो आप हमारे फाउंडेशन की जो रीच आउट हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो, और मैं हेल्पलाइन नंबर भी बोल देती हूँ, 9615931593। आप इस पे कॉल कर सकते हो, और हमारे छाव फाउंडेशन के थ्रू हम लोग सीधे तौर पे उस सर्वाइवर तक मदद पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके बात से ऑब्वियसली मतलब मैं भी सहमत हूँ कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, मतलब और इसके मेरा और साथ एक साथ सवाल है।
बिल्कुल हाँ अ, हाँ, जो पहले ही हम सब ने कहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज स्टिल देयर, अभी भी है हमारे देश पे। तो आपको क्या लगता है कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं, अ, कैसे ये मेंटेलिटी हम चेंज हाँ, कर सकते मतलब हम लोग जब बात करते हैं ना कि किसी भी टॉपिक पर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद मतलब घर जाते हैं? हैं हम और भूल खाते हैं जाते पीते हैं हैं, सो जाते हैं और भूल जाते हैं। हम भूल तो जाते हैं। मतलब यही हाँ है कि अगर जो आज कोई भी मुझे सुन रहा है और उससे मेरा एक भी पॉइंट मतलब सीख पाता है, तो उसको लाइफ टाइम तक याद रखे, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं जी मतलब जी भूलने के लिए नहीं बोल रही हूँ या कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ। मतलब जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे साथ बीती है, मैं वही शेयर कर रही हूँ। और मतलब हो सकता है कि जी आप उस स्टेप के लिए तैयार हो, आप लोग कुछ सीख पाओ। तो यही है कि मतलब कि जब जब हम मतलब कि किसी भी चीज में फर्क करते हैं, अगर हम ये फर्क करना बंद कर दे, जैसे कि हमारे घर में ही ये चीज हम लोग घर से ही सीखते हैं, हमारे घर में ही फर्क होता है कि अगर बेटा हुआ तो उसको दूध देना है और बेटी हुई तो चाय भी नहीं देना है। तो इस तरीके से कि बेटी, हाँ बेटी हुई तो मतलब जी बेटी हुई तो घर में काम झाड़ू पोछा लगवाना है, और बेटा हुआ तो उसको कॉलेज में पढ़ने भेजना है। तो ये सब जो होता है ना, ये हमारे घर से स्टार्ट होता है। अगर हम बेटा बेटी में फर्क करना बंद कर दें, तो वो बाहर जाके भी फर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो हमारी परवरिश होती है, वो परवरिश पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके की परवरिश दे रहे हैं। अगर मेरे कोई बच्चा होता है तो मैं उसको अभी से सिखाऊंगी, नहीं ये सब दीदी है और या ये सब भैया है, इसको एक समान देखना है, एक समान सब कुछ करना है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए भी। अगर मैं टॉयज ला रही हूँ तो दोनों के लिए बराबर टॉयज दोनों लाऊंगी, के ये लिए। नहीं कि हाँ हाँ आपके लिए महंगा टॉयज लाऊंगी, बेटी के लिए या कम टॉयज लाऊंगी। तो मतलब इस तरीके से कि हम लोगों को एक समान देखना पड़ेगा, तभी हम लोग समाज में कुछ चेंज कर पाएंगे। और हमें अपनी जी सोच जी को चेंज बिल्कुल। करना पड़ेगा, तभी हम इस समाज को एक अच्छा समाज या एक अच्छा सोसाइटी बना पाएंगे। पहले हमारी सोच जी को चेंज करना पड़ेगा, पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब हम किसी और को चेंज करने की बात करेंगे। जी बिल्कुल। और आपका हाँ ये जो कैंपेन है, मतलब ऐसे कैंपेन, स्टॉप ऐसे डाटा कैंपेन, तो क्या नई मेजर्स, आप न्यू मेजर्स जो ले रहे हैं अभी, तो क्या आप बता सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हम सबको? क्या मतलब, मैं मतलब समझी नहीं। नई जो मेजर्स ले रहे हैं आप अभी, न्यू मेजर्स इसे में आप मुझे हिंदी में समझाइए, मेजर मतलब। मतलब सुना दी नई तो चीज अगर क्या आप न्यू? कुछ कर रहे हैं कुछ, हाँ श्योर, कोई भी नहीं अगर नहीं नहीं, आप नई अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ सुना दी, नई जस्ट सवाल, एक्सप्लेन हाँ कर। हाँ या हाँ हाँ। श्योर श्योर। तो आई थिंक अंशु जो भी आप पूछना चाह रही है थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि अगर कुछ नई चीज आप कर रहे हो, है ना, मतलब पहले आप एक तरह से काम कर रहे थे, अगर कुछ नई तरीके आप ढूंढ रहे हो इन दिनों और कुछ नई चीजें करने की जी कोशिश जी कर रहे हो, जैसे एक हाँ इनिशिएटिव या के बारे में आपने ऑलरेडी बताया, और अगर ऐसा कुछ है या कुछ या भी। अभी तो हम लोग अपने एक स्टोरी ही आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लिया है, तो उस पे मतलब कि काफी महीने लगे हैं, मतलब कि पूरी मेहनत लगी, पूरी टीम टीम ने पूरा वर्क किया है। बाकी हम्म अभी हम लोग एक अपनी ऐप भी ला रहे थे, सिरोज हैंगआउट की, अभी वो बन रही है और जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। उसके बीच में हम्म बाकी हमारा सारा फोकस अपना अभी एक स्टोरी पे ही है, क्योंकि एक गिफ्ट स्टोरी भी है मतलब सिरोज के ही माध्यम, क्योंकि जब हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया था तो लोग सिरोज आते थे तो लोग बोलते थे कि सिरोज से आगे सिरोज से आप आगे क्या करना चाहते हो। तो अभी हम लोग उनको बताएंगे कि हम लोगों ने स्टॉप एसिड कैंपेन से अपने सिरोज की नींव रखी थी, और सिरोज हैंगआउट से अभी हम लोगों ने एक गिफ्ट स्टोरी की नींव रखी है। और हम लोग इसी प्रोजेक्ट को अभी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी 4-5 दिन ही हुआ है उसको लॉन्च हुए। तो अभी हम लोग पूरा डायरेक्शन जो है, हमारी पूरी मेहनत एक स्टोरी पे ही है। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग भी पूरा पूरा सहयोग कीजिएगा, हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, जैसे ही आप लोगों ने आज तक हम लोगों को सपोर्ट किया, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। जी एक सवाल था अंशु, मतलब थैंक यू, पहली बात तो ये है कि आपने इतनी अच्छी तरीके से हाँ। सारी थैंक चीजें यू टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ करी, यू। और तो जॉली, ऑल ऑफ यू डॉली एक्चुअली, जी और आपको भी। या कॉलेज भी आपको भी डेफिनेटली हमको बहुत सारी नई चीजें पता चली, और मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प हुआ।
क्योंकि ऐसे इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए और कैसे हम इस सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि कैसे मदद कर सकते हैं, पर साथ मिलके कैसे इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस चीज में हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। शायद से हम सब लोगों को गाइडेंस चाहिए जो आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर हाँ रहे हो, तो ये बहुत या मददगार है हमारे लिए। और एक बहुत सारे लोग, हाँ हाँ जी, प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए बहुत सारे बोलिए। लोग ऐसे बोलते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि आप मतलब हमें पैसों से ही सपोर्ट करें। आपके बिल्कुल पास किसी भी प्रकार की कोई भी स्किल्स है, आप वो हमें दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कैफे में सर्वाइवर्स जो वर्क कर रही हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है और वो एजुकेशन पूरा करना चाहती हैं, तो आप पढ़ा सकते हो। अगर आप क्राफ्ट का काम जानते हो तो आप क्राफ्ट सिखा सकते हो। अगर आप ब्यूटी का काम तो आपको आप उसकी ट्रेनिंग दे सकते हो। आपके अंदर जो भी स्किल्स है आप वो दे सकते हो। बाकी आप हमारे साथ वॉलेंटियर कर सकते हो, और मतलब कि आप इस तरीके से भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। और हम लोगों का ऑनलाइन फॉर्म है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अंशु, थैंक यू। एक बस क्यूरियोसिटी थी, थोड़ा सा अलग सा एक सवाल है कि छपाक जैसी एक फिल्म है और मैंने आपकी वेबसाइट में भी देखा है कि आप लोग भी उससे जुड़े थे, उसके प्रमोशन वगैरह में। तो इस तरह की जो मेन स्ट्रीम मूवीज वगैरह होती है, जो फिल्म्स आती है, सिनेमा होती है, आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी भी तरह से इस स्ट्रगल को जिसमें आप हो उसको मदद करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से? और डॉली क्या जी ये आपको फिल्म आपको जस्टिस दिलाया, मतलब जस्टिस की आपके साथ ये फिल्म जो है डॉली को छपा? करना है कि मेरे को करना है? आप दोनों बता सकते हो। दोनों दोनों। जिसको जिसको डॉली कर दो। ओके ओके। ओ मतलब मतलब मेरे अटैकर को तो मतलब लाइफ टाइम की सजा हो गई थी। मतलब उस टाइम तो जजमेंट जल्दी मिल गया मुझे 2015 में ही मिल गया था मुझे। पर जितना मुझे प्रॉब्लम जब होती थी, जब मेरा पूरे फेस पे पट्टी होती थी, तो मुझे उस टाइम जाना पड़ता था। वो मतलब ऐसा होता था, हम लोगों के फेस पे पट्टी हो रही है फिर भी हम जा रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। पर फिर मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि मतलब मेरे अटैकर को लाइफ टाइम की सजा हुई। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा और अगर ऐसी खुशी कोई थी। भी फिल्म या ऐसा मेन स्ट्रीम में ऐसी कोई भी चीज होती है, मान लो इस मुद्दे को लेके अगर कोई सिनेमा हो रही है, ऐसा कुछ बन रही है, तो क्या आपको लगता है वो इस प्रोसेस में आपको मदद करती है? जैसे छपा की एग्जांपल मैंने लिया। हाँ मतलब उससे मतलब मूवी से जो होता है, मतलब हम 4 लोग, मतलब होता है ना 100 लोगों में से हम 5 लोगों की भी सोच बदल दें, ओके। तो हम बहुत जानते हैं। क्योंकि मूवी मूवी देखने के लिए तो बहुत सारे लोग जाते हैं, और मूवी पर ध्यान से कौन देखता है वो हम लोगों को नहीं पता। होता है ना, हम लोग मूवी तो बड़े मजे से देख रहे हैं, पर कोई कोई होता है उसमें से सीख के जाता है, कोई कोई होता है वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल सीखते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही होता है जैसे मतलब, पर हमने जब से कैंपेन स्टार्ट किया है, पर हम लोगों को लगता है हमने थोड़े लोगों की तो सोच बदली है। क्योंकि मेरे हमारे जब मैं फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 2014 में जब हमने कैफे स्टार्ट किया था सरोज हैंगआउट, तो जब गेस्ट हम लोगों को देख के चले जाते थे, फेस को देख के, मतलब अरे यहाँ अच्छे लोग नहीं, चलो चलो ऐसे करके, मतलब देख के चले जाते थे, आते नहीं थे। पर जब से हम लोगों ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया और छपाक मूवी आई है, और भी मतलब बहुत सारी मूवी होती है ना, एसिड के ऊपर भी है और रेप के ऊपर भी है, तो उसी हिसाब से मतलब बहुत सारे लोगों की सोच भी बदली है। उस हिसाब से अब आते हैं हमारे पास, मतलब कैफे में आते हैं, हम लोगों से अच्छे से बातें भी करते हैं। मतलब अब उस नजरिए से मतलब आधे लोग देखते हैं और आधे लोग नहीं देखते हैं, मतलब हम लोगों को। पर हमने आधे लोगों की सोच तो बहुत बदली है, इतना पता है, मतलब मूवी के अगर जरिए से भी। नहीं, मूवी आने से ना लोगों के अंदर बहुत जागरूकता भी आई है। क्योंकि जब मूवी मूवी जो होती है ना कि एक हॉल में 250 से 300 लोग तो आते ही हैं। और मतलब कि इतने सारे लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो उसमें मतलब कि जब देखते हैं कि पहले तो लोग क्या होते हैं ना कि हमारा फेस देख रहे हैं और दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पूरी स्टोरी देखी किस तरीके से एक लड़का पीछा करता है, फिर उसको प्रपोज करता है, फिर उसके ऊपर एसिड फेंकता है,
एसिड फेंकने के बाद सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है, सोसाइटी कैसे नहीं अपनाती है, कैसे ताने देती है, कैसे कोर्ट कचहरी के वो चक्कर लगाती है, फिर उसके बाद भी उसको मतलब कि कितने साल लग जाते हैं उसका डिसीजन आने में, और मतलब कि कहीं जॉब नहीं मिलती है, मिडिल क्लास की लड़की होती है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ता है, तो वो सोसाइटी अपनी आंखों से देख पाई है। तो मूवी के जरिए आज मतलब कि सोसाइटी में हमारी बहुत ज्यादा चेंजेस भी आए हैं। और मैं खुद की बात बताऊं कि जब हमारे कैफे में, रेस्टोरेंट में लोग आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हम लोगों ने छपाक में देखा था, और 3-4 दिन पहले भी एक छोटा सा बच्चा आया था और उन्होंने बोला कि दीदी हम लोगों ने एक मूवी में आपको देखा था, मतलब आपकी जैसी लड़की थी, और मतलब मैंने काम नहीं किया, मेरे दोस्तों ने काम किया उसमें। तो मतलब कि स्टोरी लगभग सबकी सेम ही होती है कि हम लोगों ने देखा दीदी आप बहुत संघर्ष करती हो। एक छोटा सा बच्चा जब बोल रहा है आप बहुत मोटिवेट करती हो मुझे, तो समझो कि कितना मतलब अच्छा लग रहा होगा कि एक मूवी के जरिए एक बच्चे के अंदर इतने अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, तो कितना अच्छा मतलब कि ये रहा होगा कि इसलिए मूवी का बनना बहुत जरूरी था। और मतलब उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने संघर्ष तो किया, लेकिन देखा सबने सबने बहुत अच्छे रिव्यू भी दिए और सबके अंदर चेंज भी आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसी से रिलेटेड एक लास्ट सवाल है, क्योंकि हम अभी बहुत देर हो गया, धीरे धीरे इसको समेटेंगे अभी डिस्कशन को। एक सवाल था आपसे कि जैसे आपने कहा ना कि आपके इतने सारे स्टोरीज है, बहुत सारे कहानी है, और बहुत सिर्फ इन घटनाओं की नहीं, पर इसकी बात की जो स्ट्रगल है उसकी भी बहुत सारी कहानियां होंगी आपकी, जो चीजें आपने देखी है जिंदगी में, शायद से बहुत कम लोग आपकी उम्र में इतने सारे चीजें देखी होंगी। तो क्या उन चीजों को आप डॉक्यूमेंट करने की किसी भी किताब के आकार में या किसी भी तरीके से, ताकि और ज्यादा लोगों के पास वो पहुंच पाए, ऐसा कोई प्लान है क्या आपका? मतलब नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो रखी है ना कि अपने आप में ही कि बता नहीं सकते कि वैसे तो हम लोग काम करते हैं और सबकी जॉब है, सिरोज हैंगआउट ने सबको, सभी सर्वाइवर्स को सबके जो वर्क दे रखे हैं, और सब लोग मतलब वर्क में इतना बिजी रहते हैं ना, और उनकी अपना स्ट्रगल कहाँ तक याद करेंगे। एक मोमेंट पे उनके लिए स्ट्रगल होता है, जब कोई सामने वाला मिल रहा होता है ना, उसकी आंखों में जो दया होती है वो भी हमारे लिए स्ट्रगल है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं एसिड को बंद करने के लिए कि हमें हमारी समाज में एक हमें पहचान मिले। हम ये नहीं चाहते कि कोई दया के भावना से हमें मूर्ति बना के पूजे, हमें हमारी पहचान मिले। तो वो भी हमारे लिए स्ट्रगल होता है। तो हम इतने इतने स्ट्रगल लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ही हमें ठेस पहुंचाएंगे कि हम किताब में उनको नोट करेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्ट्रगल को हमें याद करने की जरूरत है। जब वो बात होती है तो सारे स्ट्रगल जबान पे आ ही जाते हैं ना किसी बात के थ्रू। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर योर आंसर। बहुत ही अलग तरीके से आपने इस सवाल को डील किया। salute to all of you for this initiative. I mean, truly, मतलब you guys are doing a wonderful job, all of you. Seriously, all of you. और as a social worker also, I mean, I have been in this field. मैं यहीं पे काम, मतलब as a social worker मैं भी काम करती रही, तो मैं समझ पाती हूँ कि आप लोगों का जो स्ट्रगल है वो कितना रियल है, और एज अ सोशल वर्कर आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है इस फील्ड में, एज अ प्रोफेशनल आपकी कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। हम खत्म करेंगे अभी इस डिस्कशन को, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना, आपके साथ बातें करके बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और डॉली जी आपको भी, और अंशु आपको भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारी चीजें करते हो, आप रिसाइटेशन करते हो, कविता करते हो, और हाँ, एक सुनाइए। एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा कुछ हमारे लिए सुना दीजिए, फिर हम धीरे व्रैप करेंगे। क्या मैं सुना ही नहीं, एक्चुअली में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो हम कह रहे थे कि हमने सुना है कि आप कविताएं बहुत अच्छे से आप बोलना पसंद करते हो, आप रिसाइटेशन करते हो, है ना? तो अगर आप हमारे लिए एक कविता बोल सको, या कुछ भी जो आपकी मन है करने का, अगर आप कुछ भी करो। हाँ, मतलब कि मुझे कविता लिखना अच्छा लगता है। बाकी मैं मतलब कि मेरी एक आदत है कि जब मैं लिखती हूँ ना तो मुझे खुद को याद नहीं रहता है, लेकिन मैं एसिड अटैक के ऊपर ही 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी कि
तुमने चेहरा मिटाने की कोशिश की थी पर मेरे रूह में अभी जान बाकी है। तुमने चेहरा मिटाने की कोशिश की थी पर अभी मेरे रूह में जान अभी बाकी है। तुमने सूरज छीन ली मेरी तो क्या हुआ, मेरे सपनों की उड़ान अभी बाकी है। और एक लाइन और है कि कहानी खूबसूरत थी मेरे चेहरे की तरह, कहानी खूबसूरत थी मेरे चेहरे की तरह, फिर एक बोतल तेजाब ने लोगों का नजरिया बदल दिया। थैंक यू। Wonderful, truly. थैंक यू, और थैंक यू। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने एक गिफ्ट स्टोरी का मतलब कि लॉन्च किया है गिफ्ट स्टोरी, तो हम लोगों ने अभी एक फंड रेजिंग भी उसके लिए स्टार्ट किया है। तो सभी लोग हमारे फेसबुक पेज पे जाके, स्टॉप एसिड अटैक पे जाके, आप लिंक पे जाके या एक गिफ्ट स्टोरी सर्च करके आप लोग हमें फंड भी कर सकते हो और हमारे पेज को सपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। डॉली, आप भी अगर कुछ कहना चाहो, क्योंकि हम एकदम खत्म करने वाले हैं हमारे Okay, दर्शक। Sonali ji, there is a question, I think. अच्छा, Can we talk about what kind of acids are illegal to sell and how can we stop selling those dangerous acids in the first place? I think we can come to I mean, This question is asked by Deborna De. acha, cool. So we can address it. Let us just sum it up a little, wrap it up, and then probably if there is time, we will definitely try and address the question. Anshu Thank ji you for the बोले question तो anyway. हाँ, so अच्छा, you want her to answer? Sure. अंशु जी, अगर एक सवाल है यहाँ पे कि किस किस तरह की एसिड जो है बिकती है बाजार में, वो इलीगल है, और एंड व्हाट्स द क्वेश्चन? and how can we stop selling those? हाँ, और कैसे हम कैसे हम, बंद कर देंगे? हाँ, उनको बेचना कैसे बंद कर सकते हैं, बेसिकली ऐसा एक सवाल है। और अगर आपको लगता है कि एसिड बेचना बंद करने से कुछ फर्क भी पड़ता है, तो वो भी आप ऐड कर दीजिए सकते हो। या अगर आप सभी लोग भी मतलब जो हमारा यूथ है उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है इसमें, क्योंकि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे ही इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अगर आपके जिले में कहीं भी एसिड बिक रहा है तो आप वहाँ पे छोटा छोटा वीडियो बना के आप जो जाके डीएम के पास या मतलब कि कहीं भी थाने में कंप्लेन कर सकते हैं। और उस जो शॉपकीपर खुलेआम एसिड बेच रहा है तो उसके नाम कंप्लेन भी कर सकते हैं। और जब एक के नाम कंप्लेन होगा तो वो दूसरा वाला भी डर के कारण तो वो भी एसिड नहीं रखेगा, और एसिड रखेगा तो मतलब कि जब भी कोई भी एसिड लेने आएगा तो उसका आधार कार्ड मांगेगा और मतलब देखेगा कि वो 18 साल से ऊपर है कि नहीं है। तो मतलब ये भी आप कर सकते हो कि आप छोटा छोटा वीडियो बनाइए अपने जिले में और आप लोग जाके मतलब उसके खिलाफ मतलब कि एक फूड एसिड कैंपेन भी चला सकते हो, जिसमें कि आप मतलब हम लोगों को भी टैग कर सकते हो और हम लोग भी आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, दिस वाज हेल्पफुल। या तो हम फिर से डॉली के पास एक बार आएंगे, और डॉली, आप कुछ भी कहना चाहते हो और हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए प्लीज कुछ कह सकते हो, कुछ भी मैसेज, कुछ भी आपको लगे आप बताना चाहते हैं हमको। मतलब आप लोगों से बातें करके अच्छा लगा, और मतलब आप लोगों ने अच्छा किया, मतलब हम लोगों को और ज्यादा नॉलेज मिली आप लोगों से। और मतलब मैंने अंशु को भी सुन रहे थे तो मुझे अंशु की बातें भी अच्छी लग रही थी, और मैं मतलब होता ना हम लोगों ने एक, और मतलब हमारे कैंपेन के बारे में भी हम लोग चाहते हैं अपनी स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस क्राइम को रोकें। क्योंकि होता ना किसी जरिए से, जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड को बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को बताएगी, उसी जरिए से हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं, फिर आप तो अपनी फ्रेंडों से बातें करोगे तो इसी जरिए से एक चैन बन जाएगी। तो मतलब हम लोगों का एक होता ना एक मकसद है, वो पूरा हो जाएगा एसिड अटैक रोकने के लिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू। Thank you. हम खत्म ही करने वाले हैं। शीर्षा को बस थोड़ा, थैंक यू मैम, थैंक यू परसपुर मैगजीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सभी को अपनी स्टोरी रखने का आप लोगों ने मौका दिया। थैंक यू परसपुर मैगजीन। हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। अंशु मैम कहते हो हमें, अंशु। ठीक है, अच्छा, खत्म ही करने वाले हैं, बट
Trisha is here. I would like to request her to conclude. हाँ Okay. Thank you, Di. Bye. Yes. Thank So hi team, and yes, Dolly, you can take the leave. आप जा सकती हैं. Okay. मेरे Thank you फोन में so चार्ज much. नहीं है ना, इसलिए जा. Sure, Okay. sure, Bye, no Di. problem. Bye, Bye, darling. bye. 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बाय बाय. Yeah. जी. तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो apologies for that. और तो सोनाली एंड बियास, ये बहुत अच्छा सेशन था, और छाव फाउंडेशन के बिहाफ से मैं आप सभी को, इवन फॉरोस्पॉट की पूरे इंटायर टीम को बहुत बहुत सारा थैंक यू. एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारे कॉज को हाईलाइट किया, और हमारे शीरोज को ये चांस दिया कि वो अपने व्यूज, वो अपने जो थॉट्स है उनके, वो आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर पाए. मैं खुद बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से ही हूँ, और ये मुझे बहुत एक अच्छा लग रहा है कि मैंने जनरली एज एन इवेंट कोऑर्डिनेटर बाहर के मैगजीन्स और बाहर के इवेंट्स कोऑर्डिनेट किए हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं खुद मेरे होम टाउन से कुछ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ. और क्योंकि हमें पता है कि बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम आफ्टर यूपी एंड बिहार फॉर एसिड अटैक. तो बंगाल के लोगों को अवेयर करना, हमारे यहाँ की यूथ को इक्वली अवेयर करना, ये बहुत जरूरी था. और हमारे शीरोज जो है, मतलब ये अभी एक इंस्पिरेशन है. ये हम अभी इनको एसिड अटैक सर्वाइवर नहीं बोलते, हम अभी, मुझे पर्सनली लगता है ये अभी हमारे मतलब रोल मॉडल है. वो ऐसे काम करते हैं ना. तो वो आके हमारे ऑडियंस को उन्होंने इतना कुछ बताया. अंशु जी, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए. और इवन फॉरोस्पॉट टीम, मुझे आई बिलीव कि हम लोग फ्यूचर में और बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग एसोसिएशन विद ऑल ऑफ यू. तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए. अगर लोग चाहते हैं तो जैसे अंशु जी ने बोला कि हमें सपोर्ट वो बहुत तरह कर सकते हैं. वो हमारे मेंबरशिप प्लान्स ले सकते हैं. हमारा जो नया बिजनेस वेंचर आया है गिफ्ट स्टोरी, क्योंकि पैंडेमिक के कारण कैफेज और फूड इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं. तो जो हमारा ऑनलाइन गिफ्टिंग स्टोर है, उसके लिए मिलाप पे हमारा फंड रेजर चल रहा है. दे कैन सपोर्ट अस दैट वे, और सिंपली दे कैन वॉलंटियर विद अस. हमारा लिंक, मतलब वो लोग कभी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शीरोज हैंगआउट या स्टॉप एसिड अटैक पे हमें मैसेज कर सकते हैं. वी विल गेट बैक टू देम विद एनी असिस्टेंस दे नीड. एंड बस यही है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. आप लोग में हमारा ये चाहत है कि हम लोग अवेयरनेस बढ़ाते रहे लोगों में, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें और एसिड अटैक के ऊपर ना करना पड़े. बस मतलब हम लोग एक सेशन फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करें कि और कोई एसिड अटैक हमें नेक्स्ट कुछ ईयर्स में देखना नहीं पड़े, rather than just spreading awareness and asking people के stop acid attack. So we look forward towards that, और I believe कि हम लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो हम ये बदलाव सोसाइटी में ला सकते हैं. So best wishes फॉरोस्पॉट टीम, and thank you again from Chao Foundation. Thank you. Best wishes to Chao Foundation also. As well, yes. Thank you, Shesha. Yeah. Thank you, Anshu, for joining and giving your Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. And from this, I think we can conclude that we are not here looking for some remedy, but we are basically looking for a solution, a permanent solution that we are looking forward to together, of course. Yes. Thank you, everyone, the viewers also for supporting us with this. Yeah. Bye. Good night. Thank you so much. Bye, Good night, Anshu. guys. Bye, Anshu. Thank you. Bye, ma'am. Bye. मैम बोलने की जरूरत नहीं है. Sorry. Okay. We'll keep contact with you. Yeah, we'll keep in touch. Bye. Bye, Shesha. Okay.